बोलू शकतो पुढं पुढं. ठीक आहे.
program satu. काल में फिर काल में ये गद यादन de ni bokenga dead university and service it on la toya na bi am la ka du bidu yo la ga ba hi mulu senior most alo area hok government lok yene politics line lok yene business line lok yene Vietnam in line lok yena hilo abua hok alo ka 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 hinan ka de pungam tu him kala ok akna especially muluk galo geng na muluk kena ni gom sin ko punun tu nani nok arman ni tatwa kena ni gom no him hogo him
aji go participate rutal pala noi ne hadura pala ngunu pemni taw lok kumdak na ngok at moken ga ngo nur atu na hen madul pe mu ka gam ken ga pat ja ngok ai be to ngo gam ken ga pat lok aw ber ngam ngok omein bedu to em bis ga ngok ni at moken ga la ngok ai ga la lai thi siem ngo aljaba object ijahi jarkar adu jarkar kan mulu aum lo pe ya jarkar kan ne baslu teno sin to lo nida ko lo ye na ko me ka pakan nam ma kan ba me me bedakan amulu ko aum lo ki ja ke ko baslu ok mulu lai hisrien kan me ngok kan me asolit na ye ke jin alnaka mai be jin alna ye ke ngok ayo hi lili bokende abu doba nam gam kinan la abu doba yen me ke pat em me ke amma ngok ay sin dunya du ngo hokala ngoki ga da hokala honyap nam mut ngen mane ngok ke awam berkium awa berpla yung naklo kindrin nakadu yung pinaklo kindrin nakadu yung binaklo kindrin nakadu aw kindrin na tika bango kayo kinaripi nila hinama kumuna at sobrang ang batolo yun na ako may kusin alman memma mga sobrang ripinika ay mo doon na asoba may kusin hinam nginam sikama ripinjay ka ang kan are itu mane linuk takmadu tu linuk takmare lahi aluri tinjaba ki gebana aine katu okahin atne katu molako pukri manaya kadon mamuge malinba ato pukri malo haka bayano bakit atina la manan kadena muya mokro la mula lala goyong dot laka pukri le ko blako bahadele kakana muwesin niji bokenga ngen na sibuno mere school poli do tato pia ye gus dot naika bokena to gus dot naika tapata ki gus dot naika digo tata gus dot naika mulu school lo tato ija kadi namma niya ajigo gumul hunaga rinangai rimmagu time go Digo, ang imuri-muna, ajigo nika, bosten lalosla, kabla, yola, ilgada, ajinago, muka, nisana time, ladu kintu, alman nisana. Karmi siya tapatakintu, balorpa, hinam tapama. Nili bokensin, hika. Higelasin, yo muka, kindu pinamika. Ang karma, nai, mutu, laipan yona pa kami lakukan. Apna imul ho kayong apna life estimate lokado. Higi imul member ho kabolo. Niji boken का आवाज़ है हम सक्सेसफुल नहीं है कोई ना कोई होगा किंतु निजी आजादी तो मौक मुझे मुझ बीच ना पक्का तो मुझे ये बोलते हैं काम मातो ये का लालच का करना बोलते हैं अकेले कर अकेला मातो निजी पक्का हिली अलना ये बेयम ला इजा मुनो निजी के ये में वो पूरा काका बेचना अलना ये इजा वो पर डाउन पोल पार्टी है कुंगे वाला का तलो ता उई मोक्तोल सिंह मोक उड़म बोल सिंह नो अल्बा ये वे लाका अल्बा दो वे लाका ला ये अन्य मगर den कुंगे के ला मुक ये महीन अलेन पम्मु ओक मुक नुनु कादी काट का गालुअम सिंह नुन हिस्ट्री पढ़े ना का हिंदू लाका ए मिल्टन का किताब को अबोर जंगल को कादू उस ओही किताब को गालुअम एक पामायो ok itu nama bor abor बाद में नहीं abor नियो का नहीं गोवा abor को itu गोवा abor mun ma galwa ben mun galwa ogoni ye recognize na ni kama to
1911 का आगो महिने ही निजी ने अब तो को 1915 लो ही आगे लो निजी बोकेंदे ब माता को ब्रिटिश का तो होगा तो आगे ना मुनु ब्रिटिश का सिविलाइजेशन हाथ को बोलो कर ये माया का के बागा हाला अलग हिया बेल के तेरा हाला अलग याम नहीं ये ब्रिटिश ओ ब्रिटिश मुनु का गालोन तास माइनी सिर्फ गालोन तास को बोलो माया बोलो टेन कोरा बोलो मुनु जनरल वॉर होकर अब केवल एटेक नाम लगा बा विलियमसन ने पनाम केवल एटेक तक दबो तू कोलंबो मुल्हाबेनी ओने गालो अब्बेन यो काद को गालो बे तब पीगा बेनी काद को ओकनी जी बकेने मुन पक्तु ने का को माई पोतु को मसला ले तू मुन जी बकेने पक्तु बेन यो काद अमी मा ही माने मुनु समाजो को कॉम्पिटिशन इहुम साकामायो मेई साकामायो निजी बोकेने यो ना जगह लो निजी बोकेने मुकाबला इदे नाकामा मुक विजनरी मुक मुना मुक असनापु ओक डोमिनेट पावर हुकुमला गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओए गोकु नामा मुका अरे तू प्रोटोकॉल मते प्रेसिडेंट भी है गोकु देना ओए गोकु गेला इतना तो मुक माने डोमिनेशन पावर मुक मुना मनम मुक पीसा बीजम अमीन में निजी बोकेने मुनु योना प्रॉब्लम निजी बोकेने मुनु मुका देखा गालों यम निजी बोकेन पाक्तु यम निजी बोकेन ये पाक्तु सिन हिडन बाकेन गमनुन ओका मा सिपिन्या नुन मेनसा होगो मुनु पाक्तु 20 December माया लो होगो मुनु पाक्तु इम्पाला माया हित केन गमनो आज मा भाई मु आलो फाउंडेशन ही तोक्सिन मुनु क्या मेगोना दिगरी दोलो लकिये बगा बोलो ले लो हमको माया मु न ओमियम न मनी आज जगह आसिन मु के इले नाम मत अमीन में निजी है तो सब कुछ है ताजे निजी बोके है तो सब कुछ है निजी बोके ने मेन पाल देना होगो दुनिया होगो गालो हमाजो कामा गालो हमें अरुणाचल खिने उस जमाने में निजी बोके ने मुकाबला ना अरुणाचल कामाना तिरापा दाजिना को राजा सिस्टम पास्टम बमुन दोलवर इल्दोस बाल्यो अब लोग निजी बोके ने मुनु होगो मुकाबला ते कामा का अमीन में मुनु काबु कुमनाब जो मशीन निजी नो में मिल गए यों दाको गालुआ में निजी नो मिल गए ओका अनाब के में पीपलो दागा पीप जागना अखरुदना कादा जागना अखरुदना बेसुलुतगे बेसुलुगना अखरुदना बेलोलुतगे बेलोलुगना अखरुद निजी लुगना मुनुक लीडना मुनुक पीसा ना मुनुक बुनाम तते ही इम्प्लीमेंट इदु नेंका काका तोका मु आर्केमिसरम लान मशीन उई मतलब ता मोक आवा हेल्प लगे मोक आवा सबसे अरुणाचल में आगे जाना है ये हुआ है ना ये सीएम सीओ मंत्री दो उनका डिस्ट्रिक्ट ओदा अब जामा जिसके कगायम खान पी वो दूबा तो डायरेक्टोरियम डिपार्टमेंट लोग अब बुलोकल गालोगा दे दू तो इंजीनियरिंग गालो दे दू मान तो अब में लीड ना मैं लगा अगर निजी बोकेंगे पीछे निजी बोकेंगे मुल्की मेरा नाम केंटोत है सेकेंड सन ऑफ लेट बोकेनेट है थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए आज सेकेंड डेट एनिवर्सरी है हाँ तो किस तरह से फर्स्ट एमएलए भी बने आलो के और काफ़ी सारा काम भी करके गए हैं सोसाइटी के लिए तो आप क्या कहेंगे आज जैसे कि आप बोला है आज हमारा लेट पिताजी का सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है तो असल में इनका 2 साल पहले ही पिताजी गुजर गए थे लेकिन ये कोरोना का वजह से लास्ट ईयर हम लोग ये जो एक मेमोरी का एक बनाते हैं वो हम लोग नहीं कर पाया तो इसलिए इस साल हम लोग इसको कर रहा हूँ ये स्टैचू लगा रहा हूँ तो मेरा पिताजी का बारे में तो सच बोलने से अभी का जो नया जनरेशन है इनको तो शायद उतना मालूम नहीं है पुराने लोग वो उनका कोई
इंट्रोडक्शन का कोई बात नहीं है, उनको सभी जानता है। और इंडिया में पहले का पुराना जितना ऑफिसर है सभी को इनका बारे में, पिताजी के बारे में मालूम है। क्योंकि पिताजी वैसे तो उनका कैरियर शुरुआत हुआ था एक आजकल का दिन में ये प्योर कहते हैं, चपरासी के या कुछ उन लोग क्या अलग कुछ पोस्ट था वो, मतलब उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट हुआ पॉलिटिकल इंटरप्रेटर, यानी कि जो ऑफिसर लोग उस समय में तो हमारे लोग हिंदी आसामीज वगैरह अच्छा से नहीं जानता था, तो ऑफिसर लोग समझ में नहीं आता था, तो कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए इनका, इस मैंने पॉलिटिकल मैटर में किसी को ऑफिसर लोग को कोई भी यहाँ का जो लोकल प्रॉब्लम है उनको ब्रीफिंग करना, अप्राइज करना, ये सब कोई ज़रूरत पड़ता था तो उसको पीआई बोलता था। ऐसा उनका अपॉइंटमेंट किया। उस समय में पासीघाट में था। तो बाद में 1947 में ये आलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुला, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोलने में भी पिताजी का हाथ था, क्योंकि पिताजी हम लोग को बताया था उस समय में पासीघाट के लोग उसको लैंड देने को तैयार नहीं था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोलने के लिए। तो पिताजी बोले चलो आप लोग उधर में हमारा वहाँ में आलो में ये मैं लैंड दिलाता हूँ। तो उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ का इलाका का जितना भी कॉन्सर्न जीबीज है, उस समय का बुजुर्ग है, लैंड ओनर है, सबको बुलाया, उनको समझाया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने से हमको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा से होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा, रोड कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हर तरह से विकास होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ऐसा समझाया। तो उस समय का लोग सब इस बात को मान के ये जो लैंड है ये भी पूरा पब्लिक का तरफ से, खास तौर से यहाँ का जो लोग ये देगो पान्या, काबू, दरका, पाकम, यहाँ का जो लैंड ओनर लोग हैं उन लोग डोनेट किया। इसके वजह से आला टाउन में 50-60 ऐसे में रोड नहीं था, वो एरोप्लेन से ही एक उस समय में एक कलिंगा एयरलाइंस था, आजकल तो वो नहीं है, देखोता प्लेन का सर्विस था, मोहनबारी से सर्विस होता था। वो सर्विस इतना तकलीफ होता था कि जब बारिश होगा, यहाँ में तो कभी कभी 2 महीने तक बारिश होता है, तो चावल वहाँ से आना है असम से या असम में जाके कुछ काम करना हो नहीं पाता था, बहुत तकलीफ होता था। इसलिए पिताजी ने सरकार को बोला नहीं रास्ता बनाना है। तो रास्ता बनाने के लिए उस समय में यहाँ कोई डिपार्टमेंट वगैरह, कोई इतना मजबूत डिपार्टमेंट नहीं था। पिताजी गांव का इतना ही अपना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो विलेजर्स है सबको बुला करके रिक्वेस्ट करके यहाँ से लिकावाली तक रास्ता कटवाया ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस। सरकार से कुछ पैसा वैसा नहीं लिया है, पब्लिक लोग, गांव वाला लोग अपना चावल लेके, अपना हथियार लेके, यहाँ से लेके काट के लिकावाली तक पहुँचा। बाद में ग्रेफ आया 60 या 61 में ग्रेफ है, उन लोग उसको टेकअप किया, तो उनके लिए आसान हो गया, पहले से कुछ एक तो बना कर रखा। तो उसके बाद पिताजी सोचा है एजुकेशन में जोर लगाना, तो उन्होंने यहाँ में आर के मिशन इसको लाया। फिर उन्होंने सोचा नहीं लड़कियों के लिए अलग से कुछ एजुकेशन चाहिए, BKV को लाया। इस तरह से उसके बाद हमारे कल्चर में ध्यान दिया। कल्चर के लिए यहाँ में जो मोपिन होता है, आलो में 1960 में शुरू हुआ था, उसमें मोपिन का फर्स्ट प्रेसिडेंट का काम भी किया, और उस समय में जो मिथुन वगैरह का जरूरत था उन्होंने दिया था। फिर उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ में आलो में एक हम लोग का दोनी पोलो का जो बिजनेस है, एक मंदिर बनाया है, एक डेरे बोलते हैं हम लोग, बनाया है, और उस जगह को कल्चरल काम के लिए, अपने कल्चर के लिए उस जगह को बनाया है। इसमें भी बहुत काम किया उन्होंने। ऐसे अनगिनत काम उनका है, वो बोलने जाएगा तो अभी हमको 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो जो मेन बात जो है उसको आपको हम बता दिया। और यहाँ में इंग्लिश खास तौर से एक समय में यहाँ में आसामीज मीडियम में पढ़ाया होता था। तो पिताजी सोचा है कि आसामीज में, वो एक बार दिल्ली में गया, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको मिला है, तो उन लोग कोई आसामीज समझता नहीं है। तो पिताजी अरे जिस भाषा को प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या दिल्ली के लोग समझते ही नहीं, ऐसा भाषा एक तो हम लोग का बच्चा को सिखा रहा है, ये ठीक नहीं होगा।
इंग्लिश स्कूल लाना है बोल के उन्होंने जोर लगा करके ये आर.के. मिशन स्कूल को लाया। इस तरह का उन्होंने काम बहुत यहाँ के लोगों के लिए किया है और भी बहुत बात है, लेकिन अभी इतने में थैंक यू। आज का जो ये जो आपका जो फादर का जो आज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। नहीं, आज एक्चुअली पिछले साल हमको इनका ये सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है, तो पिछले साल कोरोना की वजह से हम मना नहीं पाए। तो एक्चुअली ऐसे तो एनिवर्सरी मनाने का जो सिस्टम है हमारे आबोतानी के दिन से तो था नहीं, लेकिन अभी एक सिस्टम सा बन गया है। तो मेरे माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो गई, उनका भी एक इच्छा था, तो हमने इसलिए कोशिश किया कि फादर का मैं उनके बेटे होने की हैसियत से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी, लेकिन आलोंग के वासी जो है अरुणाचल के बहुत से डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पूछते भी उनके पिताजी के बारे में, तो मैंने सोचा चलो उनके यादगार के हिसाब से एक छोटा सा मेमोरियल बनाया जाए। तो ये जो फोटो भी जो लगाया पीछे, ये उनका 1957-58 का जब आलो लिखावली रास्ता बना रहा था उस टाइम का फोटो है। उनके टाइम में अभी की तरह अच्छा कैमरा, अच्छा मेगापिक्सल वाला तो होता नहीं था, तो ये जो है अभी आपको उस टाइम का, इसको हमने कोशिश किया है ये आपके फाइबर ग्लास से बना के उनकी याददाश्त में, और ये दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं जो हमने थोड़ा सा कंपाइल किया है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी को आलोंग का डेवलपमेंट के लिए, अर्लियर डेज में सियांग का डेवलपमेंट के लिए, और कुछ हद तक एज ए कंट्रीब्यूशन टू अरुणाचल, उसका ये जो है उसको मैंने एक थोड़ा कोशिश किया है कि लोगों को थोड़ा ये करें। बाकी पब्लिक का भी एक डिमांड था कि थोड़ा पिताजी के याद में तो ये बनाना बहुत जरूरी है, तो बहुत ने डिमांड तो किया था कि सरकार से बोले यहाँ पे कुछ बढ़िया सा और बनाए। गवर्नमेंट ने भी एक एश्योरेंस तो दिया हुआ है, तो सीएम साहब ने तो असेंबली में एक एश्योरेंस दिया हुआ है कि फादर के नाम से यहाँ एक कन्वेंशन हॉल बनाएगा। तो अभी तो फिलहाल 2 साल तो गुजर गया, बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो करेंगे। पिछले साल कोरोना के चलते सब काम आपका रुक गया था। अच्छा, हमारी एक श्रद्धांजलि है पिताजी को भी। सर, आज के डेट में सर यूथ जो है काफ़ी खराब रास्ते में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? यूथ एक्चुअली मैं कहूँगा इनका, मैं उनको ब्लेम नहीं देता हूँ, बट एक तो है कि उनका जो मैं कहूँगा पढ़ाई में जो ध्यान देते हैं ना, हम लोग आर.के. मिशन के प्रोडक्ट हैं। आर.के. मिशन में जिस हिसाब से डिसिप्लिन होता था, अभी जितना भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में है वो डिसिप्लिन थोड़ा सा डिसिप्लिन है बट कम है थोड़ा। तो मेरे हिसाब से उनको अगर डिसिप्लिन लाइफ छोटा से अगर इनको जीना वो सिखाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से सही रास्ते पे जाएंगे। अभी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत से लोग पढ़ लिख के भी अच्छी तरह पढ़ लिख के भी आए हैं, बट आप खुद मालूम है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। उसके बाद रोजगार का भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, तो उसकी वजह से आई थिंक लोगों में जो होता है ना कि आइडल माइंड इज डेविल्स ऑल्सो, उसमें कोई भटक जाते हैं। बात ऐसे नहीं है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे भी जो है कुछ हद तक वो जाने के बाद फिर सही रास्ते पे तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एडोलेंस एज में भटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो फादर थे सोसाइटी के लिए काफ़ी काम करके गए हैं, लेकिन आज के डेट में सर ऐसे काम करने वाले कोई नहीं मिलते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही कम मिलते हैं सर, मिलने से। देखिए, मैं उस पर तो कमेंट नहीं, बहुत लोग हैं आज के डेट में भी। उस दिनों में एक्चुअली पॉलिटिक्स बहुत कम था। आज के डेट में राजनीति हर क्षेत्र में, हर कदम कदम पर राजनीति है। तो फादर के ज़माने में जो है उस टाइम पे हमारे यहाँ एक तो हम कहेंगे गवर्नर का डायरेक्ट रूल होता था, तो ये जितने भी पार्टी वगैरह है पार्टीबाजी बहुत कम होता था। तो उसके लिए एक सोसाइटी में भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि आपका ये ऑथोरिटेरियन जो रूल होता है वो ख़राब है, बट कभी कभी वो भी ज़रूरी होता है। तो फादर के टाइम पे भी एक ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है उनको विश्वास करते थे, तो उनको एक हिसाब से उनका भी हेल्प लेके, और पिताजी को पावर थोड़ा दे के रखा था कि आप गाँव वालों को साथ में लेके चले, तो वो गाँव वालों को लीड करते थे। गवर्नमेंट का जो प्लान एंड पॉलिसीज वगैरह है उसको अच्छा से समझा के, अगर गाँव वालों से भी कोई आपत्ति होता था उसको फिर वो सरकार को अच्छी तरह बताते थे। जो उस वक्त होता था, जो डीसी को पॉलिटिकल ऑफिसर जो बोलते हैं, उनकी तरह से करके एक मध्यस्थता करने के बाद ये, लेकिन ये था कि चलो उनके गांव पे लोगों का विश्वास था उनके ऊपर कि फादर कुछ करेंगे तो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। वही एक आई थिंक, तो उन्होंने भी उसका कोई ऐसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, लोगों को सही रास्ते पे ले जाने का उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। हमें भी बोलता था, मैं तो कभी स्कूल के दहलीज में गया नहीं हूँ, लेकिन अच्छी तरह पढ़ाई करना, तुम लोगों से खेती बाड़ी तो होगा नहीं, लेकिन पढ़ाई करो, आप अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करो। ये उनका एक अच्छा इंसान है। तो जब बचपन से
स्कूल नहीं जाने से पहले हम लोग बकेनेते नहीं बोलता था, हम लोग बकेनेते बोलता था, कहते बकेनेते को हम लोग बचपन से जानकर आया था। जब हम पढ़ाई लिखाई ये केंटो के साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद कलकत्ता में नवरंगपुर पढ़ने के बाद उनको केंटो के साथ आके बहुत बार मिल चुका है। उन्होंने समाज के लिए शुरू से बहुत काम कर चुका है। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन अलोंग और ऑल ओवर दीदन नेफा और आजकल अरुणाचल प्रदेश वो हाई बोलकर आपका रामकृष्ण मिशन आलोंग में आया है कि राजा लेकर दीदन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट बोला है हमको रामकृष्ण मिशन चाहिए। तो जमीन जाता है कैसे करेगा, हम तो फ्री देगा ऐसे बोल भी दिया था। मेरा बचपन का बात हम तो याद है। ये एक उनका बड़ा अचीवमेंट इन हिज लाइफ, मैंने यंग जनरेशन के लिए एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर ये काम किया। उसके बाद आज हम जहाँ गया है दोनी पोलो बारे में हम बोल के आया। एंटी कन्वर्सन के बारे में, एंटी कन्वर्सन एक्ट 1987 का एक्ट को हम ब्रीफ करके आया, एक्सप्लेन करके पब्लिक को। वो जानता था कल को ये बच्चा लोग स्कूल कॉलेज सब हो जाएगा, हमारा ये निशी या आदि या गालो या तागिन या हम लोग का समाज को कोई गौरव ना करे, उसका दिमाग में था, दिल में था। इसलिए हम लोग को भी एक पूजा पाठ करके मन शांति के लिए एक रहने का एक जगह चाहिए, यह दोनी पोलो मंदिर। हाँ, लेकिन थोड़ा इसमें ऊपर में लिखा था, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन देने के बाद उन्होंने पिटिशन लिया। वो से कोई मतलब नहीं है, हमको घर चाहिए ना, हमको प्रेयर हॉल चाहिए, हमको दोनी पोलो को याद करने की जगह चाहिए जहाँ हमारा उभर के आने वाला मेरा जितना आदमी, नारी जाति, मर्द जाति, बच्चा लोग यहाँ आकर शांति से बैठे। इसलिए ये मेरा जीवन में ये दोनों बड़ा अचीवमेंट हम मानते हैं। और उसके बाद एजुकेशन में उनका बच्चा लोग को देखिए कितना बड़ा आज ऑफिसर बन गया। उसके बाद भी होल गालो समाज के लिए ही डेडिकेटेड लाइफ। और समाज आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा ये चाहते थे, इसके लिए बीच में भी वो पॉलिटिक्स में घुसा, एक बार भी एमएलए भी बना, उसमें भी और बहुत कुछ किया। जैसे लास्ट में हम यहाँ डेमो होकर आया, हम तो उन्हें सब विजिट करते हैं, हम आशीर्वाद मांगते रहता था, हमको बोलते रहता है आजकल यंग आदमी छूते रहता है, घे तेल घी बाजी खाते रहता है, ऐसा नहीं होना है। सुबह उठो, अगर योगा करो या जॉगिंग जाओ, खाना पीना की चिंता नहीं करना। जंगल में इतना अच्छा खाना ऑर्गेनिक चीज़ है, जहाँ भी जाओ खाने मिलेगा ना, आप क्यों तेल बाजी करके पूरी खाना पड़ता करके निकाल, ऐसे क्यों सोचता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप क्या यहाँ पे देखा और क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे एमएलए उनका सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है, उसी की यादगार में हम लोग आज सब हम लोग इकट्ठा हुआ है। कलो समाज प्लस ऑल वेल विशर्स, हमारा ऑल अरुणाचली सब आज यहाँ जमा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। एक और भी बड़ा सोशल लीडर और विजनरी लीडर हमारे ऑल अरुणाचल के लिए 1950 से ब्रिटिश इंडिया से लेकर के इंडिपेंडेंट इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड में वो दोनों समय में वो भारत सरकार सोशल एक्टिविस्ट का हिसाब से, सोशल लीडर हिसाब से हमारे
जनजाति को, जो हम अरुणाचल जनजाति है, उनको इंडिया का साथ इंटीग्रेट कराया है इंडियन यूनियन में, इसलिए उसका बहुत योगदान है, उसका आज पुण्यतिथि है। इसलिए हम लोग सब आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पूरा अरुणाचल से यहाँ पहुँचा है। इसलिए सभी को जो आज यहाँ पहुँचा है, हमारा कलोनी सोसाइटी और लोगों को भी सभी को समाज के लिए काफ़ी काम करके गए हैं। आपका जब आपने नेफा का बात कहा तो उसमें रास्ता कुछ भी नहीं था, नेफा वाली से रोड उन्होंने खुद बनाने के लिए शुरू किया था, काफ़ी सारा सोसाइटी के लिए काम करके गए। आप क्या कहेंगे? उनका बहुत विजनरी लीडर था, क्योंकि वो उसने पहले रोड कनेक्टिविटी को देखा है। उस समय तो इतना हम लोग का भारत सरकार भी इतना रोड डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं था, फिर भी जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो, कम्युनिकेशन नहीं हो, यहाँ एजुकेशन बाकी डेवलपमेंट नहीं आएगा। इसलिए पूरा सियांग बेल्ट जहाँ आलो से लेकर कम से कम 150 किलोमीटर का सभी बस्तियों को सोशल सर्विस हिसाब से सभी को जोड़ करके उसने ऐसे पॉलिटिकल असिस्टेंट हिसाब से भी प्लस एक सोशल लीडर हिसाब से सभी को डिजिट करके 1960s में mid-60s में उसने रास्ता खुलाया है। प्लस उनका 52 में नेहरू का साथ मिल करके जो सोशल इवेंट्स प्रैक्टिस होता था हमारा सियांग बेल्ट में, स्लेवरी सिस्टम, उनको प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ मिल करके उनका आदेश से स्लेवरी सिस्टम हमारा अंगालो बेल्ट में पूरा सियांग बेल्ट में पूरा अभी खत्म हुआ है। आज यहाँ स्लेवरी सिस्टम नहीं है, सब हम लोग समान है। ये उनका सबसे बड़ा एक देन है सोशल सर्विस, सोशल रिफॉर्मेशन का। प्लस जैसा हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर खुद तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, एक छोटा पहने बस्ती से जो अनकनेक्टेड उस बस्ती उस जगह में ना स्कूल था ना कुछ था, लेकिन अपना विजनरी अपना मेहनत से उसने सोचा है कि अरे हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरा कमिंग जनरेशन अरुणाचल में पढ़ा लिखा होना है। पढ़ाई सबसे बड़ा चीज़ है, कलम ही सबसे ताकतवर है। इसी के संदर्भ में उसने यहाँ रामकृष्ण मिशन स्कूल, आके मिशन स्कूल खोलने का योगदान किया है। उससे पहले यहाँ एमई स्कूल, एलपी स्कूल खोला है। प्लस ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने जो विकेवी चिंतित किसने गर्ल्स एजुकेशन बहुत योगदान दिया है, बोला है। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज इसलिए सब हम लोग सिर्फ अरुणाचल समाज जो ये आर्ट मिशन खोलने का बात नहीं, सब अरुणाचल से यहाँ एडमिशन दिया है। उनका भी वही विजन था कि सब अरुणाचली सबसे लेना है। 5 डिस्ट्रिक्ट था, 5 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आर्ट मिशन में सभी डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो आज ये आर्ट मिशन का प्रोडक्ट कोई मंत्री बना है, कोई MLA बना है, कोई MP बना है, कोई DC बना है, कोई IS बना है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, सब अरुणाचल में अभी फैला हुआ है। ये उनका विजन है, इसलिए सारे अरुणाचल उनको सब पिताजी पुकारता है, उनका फादर है। हम लोग का फर्स्ट रेफा समय से लेकर ब्रिटिश इंडिया से लेकर के इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हम लोग को नेफा को इंडियन यूनियन में जोड़ने का वही हमारा योगदान है। इसलिए सब लोग यही सोचता है कि भारत सरकार, स्टेट सरकार उनको इस 75 ईयर्स का आज़ादी का अवसर में हमारे के नाते स्थान हो रहा है। हम भी यही चाहिए स्टेट गवर्नमेंट प्लस हमारे समाज को गालो समाज ऐसे मैं प्रेसिडेंट गालो वेलफेयर सोसाइटी हम तो जरूर ही हमारा नेक्स्ट मान कबा में ऐसा सोशल लीडर हम अपना पास्ट को रूट को नहीं भूलने के लिए तो हम
हमारे विजनरी लीडर्स में उन्होंने थे वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर होगा गारो समाज के लिए, इसलिए उनका भी हम लोग का गारो हेरिटेज में बान कबा में भी हम लोग का बान कबा में उसका अच्छा रिकॉग्निशन दिया गया।